আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা দাঁড়িয়ে আছি একদম শিয়ালদা স্টেশন, তার যে মেট্রোর যে গেট, মূল যে গেট, তার সামনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে মানব উত্থান সেবা সমিতির তরফ থেকে কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি সৎসঙ্গের আয়োজন করা হয়েছে। আপনারা জানেন যে শিয়ালদা স্টেশন থেকে বিভিন্ন জায়গার যে বিভিন্ন শাখায় ট্রেন কিন্তু চলাচল করে, এখানে কিন্তু এসে মিলিত হয়, এখান থেকে বিভিন্ন শাখায় ট্রেন যায়। তেমনি আজকে কিন্তু একটা রাস্তা এখান থেকে কিন্তু মানব উত্থান সেবা সমিতি তারা কিন্তু নতুন করে খুলে দিলেন। এখান থেকেও কিন্তু আধ্যাত্মের একটি জার্নি কিন্তু শুরু হতে পারে একজন মানুষের। তার জন্য কিন্তু আজকে এখানে শিয়ালদা স্টেশনকে বিশেষভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যেই অনেক বিশিষ্টজনরা, শুধুমাত্র সাধারণ যারা ভক্ত রয়েছেন তারা শুধু নয়, বিশিষ্টজনরাও এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং যারা মানব উত্থান সেবা সমিতির যারা সদস্য রয়েছে তারা রীতিমতো তৎপর এবং তারা খুব উৎসাহী। এত সুন্দর অনুষ্ঠান এত সফলভাবে এই শিয়ালদার মতো অঞ্চলে বা শিয়ালদার স্টেশনে করতে পেরে, মানে একদম শিয়ালদা স্টেশন ঢুকতে গিয়ে যে জায়গা সেখানে করতে পেরে তাদের বক্তব্য যে এখানে রাম রাজ্যত্ব এসছে এবং এখন তাদের নিজেদের যে ধর্ম সেই ধর্মকে পালন করা, তার আচার করা এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য যে প্রিভিয়াস গভর্নমেন্টের তরফ থেকে বিভিন্ন রকম সময় দেখা যেত যে পারমিশন ইত্যাদি বিভিন্নভাবে বাধাপ্রাপ্ত হতেন, তারা এখন খুলে মনের আনন্দে কিন্তু এখানে অনুষ্ঠান করছেন। দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি। চলুন আমরা দেখে নিই আজকে এখানে ভব্য অনুষ্ঠান কিভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। চলুন। हम ये कार्यक्रम इसलिए करना चाहते थे कि ये मानव समाज को इस ज्ञान का संदेश मिले। हमारे गुरु महाराज जी सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज ये ज्ञान का संदेश देना चाहते कि ये संदेश जन जन तक पहुँचे। मानव समाज को आज कहते कि ज्ञान की ज़रूरत है, मानव का मन अशांत है, शांति का रास्ता कहाँ मिलेगा? तो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही मिलेगा। तो यही संदेश देने के लिए यहाँ पे रेलवे स्टेशन शियालदा में हमने ये सद्भावना संत सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो हमारा आश्रम है न्यालीपुर में, वहाँ पे भी हर इतवार को सत्संग होता है। ब्लॉक नंबर जी 402 राजेश्वरी ज्योति मंदिर। आप भी वहाँ पे आइए, वहाँ हर इतवार को सत्संग होता है। 10 बजे से 11 बजे का उसका टाइम है, आप उससे भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आशीर्वाद देंगे, इतने सारे भक्त यहाँ पे आए हुए हैं, एकदम भक्ति में लीन है, उनको यही आशीर्वाद देंगे कि जैसे आज इतनी धीरजता रख करके इतनी 5 घंटे की तपस्या कर रहे हैं, तो भगवान उसे भी उन्हें आगे भी बहुत शक्ति दे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। আগে সনাতন ধর্মের যে কোনো কাজ করার জন্য দুবার ভাবতে হতো। কালী ঠাকুরের মূর্তিকে আমরা দেখেছি পুলিশ ভ্যানে পুলিশরা তুলে দিয়েছিল। দুর্গাপুজোর ভাসানের জন্য কোর্টে দ্বারস্থ হতে হতো। আর আজকে সনাতনীরা এইখানে বসে সনাতন চর্চা করছে, আনন্দের সাথে করছে। এটা একটি দ্বিতীয় স্বাধীনতা পেয়েছে, সনাতনীরা স্বাধীনতা পেয়েছে যে সনাতনী চর্চা আজকে খোলা আকাশের নিচে স্বাধীনভাবে হচ্ছে। একটা কথাই বলবো, বড় সেই হয় যে বাঁচায়, যে মারে সে কখনোই বড় হতে পারে না। এই কথাটা বলেছিলেন শ্রী রামচন্দ্র। তাই আমরা সবসময় বলি জয় শ্রী রাম। আর এখানে শ্রী রামচর্চাই হচ্ছে, ধর্মচর্চা হচ্ছে, সনাতনের চর্চা হচ্ছে। সনাতনের চর্চা হবে, ধর্মচর্চা হবে, ধর্ম প্রতিষ্ঠা হবে। ধর্ম হচ্ছে আমাদের সমাজের স্তম্ভ। স্তম্ভ যত দৃঢ় হবে সমাজ তত সুদৃঢ় হবে। তাই ধর্মচর্চাই হচ্ছে একমাত্র পথ সমাজকে সুদৃঢ় করার। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये मानव उत्थान समिति जो है सतपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, सदगुरु की ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम देखिए, सनातन में हमारी बहुत सारी धाराएं हैं जीवन शैली की, लेकिन जीवन शैली की जितनी भी धाराएं अगर वो अपने अपने गुरु महाराजों से या धर्म से जुड़ जाएं तो सबका मकसद एक ही। और जिस तरह से सियालदा की आप बात की, तो सियालदा अगर मैं आपको बता दूं, आप लोगों को ज्ञात होगा, सियालदा विश्व का सबसे व्यस्तम स्टेशनों में से एक होता है, जो कि सबसे सर्वाधिक यहाँ पर यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं, जो आते और जाते हैं, चाहे वो लोकल के हों या तो इस जगह का कर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में धर्म का ये लाना, ये सबसे अच्छी बात है। बंगाल बदल गया है, बंगाल में अब धर्म की जय हो रही है।
सनातनियों की जय हो रही है, सनातनों को परमिशन मिला। इससे बड़ी बात नहीं हो सकता कि एक सनातनी धर्म का प्रोग्राम करने के लिए आपको स्टेशन पर या कलकत्ता के अंदर में आपको, ये वही कलकत्ता जहाँ ग्रेट किलिंग डे हुआ था, ये यही कलकत्ता है जहाँ 10 सालों 15 सालों से यहाँ पे कोई सभा नहीं कर पाते थे, राजनीतिक सभा, धार्मिक सभा, कुछ भी आज मिल रहा है और सनातनी आगे बढ़ के कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनको। देखिए, ये आज पूरे सनातनी मिलकर इस सरकार को बदले हैं, क्योंकि वो बहुत दिन तक परेशान थे, कोई भी धर्म का कार्यक्रम नहीं हो पाता था और कहीं ना कहीं दबाया जा रहा था। तो ये जो उत्थान देख रहे हैं और ऑल ऑफ सडन जो रास्ता पे लोगों की एक आत्मविश्वास देख रहे हैं, ये सनातन के अंदर के जो इतने सालों से कुचला जा रहा था और आज वो उभर के उनके ऊपर आ गया है, उनकी खुशियां हैं जो कि वो जाहिर कर पा रहे हैं। और किसी भी समाज के कल्याण के लिए अगर धर्म आगे रहे तो सदैव उसका कल्याण होगा। आज हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि ये धरती, हम लोग बरसों से प्रयास कर रहे थे कि ये सियालदह की धरती पे कार्यक्रम हो। ये बहुत बिजी एरिया है और ये ऐतिहासिक जगह है और हमारा मानव उत्थान सेवा समिति की तरफ से बहुत ही हम लोग प्रयास कर रहे थे कि यहाँ पे कार्यक्रम हो। तो अभी जो परिवर्तन हुआ है यहाँ पे, तो उसके परिवर्तन होने से ये जो कार्यक्रम यहाँ पे सुलभ हो रहा है, क्योंकि हमको एक यहाँ पे माहौल मिला। पहले के शासन में जो लोग बैठे थे उनके जगह में, उनके पास हम लोग कई एक बार गए, लेकिन वो हम लोग को परमिशन नहीं मिला वहाँ पे। तो आज ये रामराज, जब हमारे सुकांतो दा ने जब ये नई शासन आई, उस टाइम में उनका स्टेटमेंट था, सुकांतो दादा का, जो केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय राज्य आपका शिक्षा मंत्री है, उनका स्टेटमेंट था कि रामराज आ गया। तो रामराज का ये ज्वलंत उदाहरण है यहाँ पे, क्यों राम की चर्चा यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, रामराज आया हुआ, उसका आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारे संत महात्मा आराम से सत्संग प्रचार कर रहे हैं, विचार दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा हम सब का सौभाग्य है और हम लोग बहुत ही खुश हैं एकदम। जब ये नई गवर्नमेंट आई तो पूरा बंगाल भगमय में हो गया और सभी राहत का सांस ले रहा है और सब खुश हैं। पूरे सनातन जो सनातनी एक हो गए हैं और उसी का एक उदाहरण है यहाँ पे। सभी लोग जो आने जाने वाले भी लोग भी खुश होकर पूरा प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम में बहुत सारे लोग आए हुए, बहुत जगह से लोग आए हुए, हर एक जिला से लोग आए हुए, पूरे बंगाल से, पश्चिम बंगाल से कोने कोने से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। हमारा मानना ऐसा है कि सब वो शक्ति कार्य करती है, जो हर एक युग के अंदर जो शक्ति आई है, जो जैसे सतयुग के अंदर भगवान विष्णु आए, त्रेता के अंदर भगवान राम आए, द्वापर के अंदर भगवान कृष्ण आए, वैसे कलिकाल के अंदर भी वो महाप्रभु आए हुए हैं। उनकी शक्ति से सारा कार्य हो रहा है। और गुरुमा जी, जो हमारे गुरुमा जी परम पूज्य सतगुरुदेव सतपाल जी महाराज है, उनके पूरा मतलब शक्ति से सारा कार्य हो रहा है। और भी बहुत जल्दी कार्यक्रम होने वाला है। अभी दक्षिणदारी के अंदर भी कार्यक्रम होगा, तो पूरे बंगाल के अंदर घुमा घुमा कार्यक्रम होगा। इस टाइप का प्रोग्राम पहले सोचा नहीं जा सकता कि बंगाल के अंदर जय श्री राम बोलना एक बहुत बड़ा पाप था, ऐसा कर दिया गया था ममता सरकार में। आज के समय में जब परिवर्तन हुआ है, हिंदुओं का राज आया है, जैसे लगता है कि देश आज़ाद हुआ है, बंगाल आज़ाद हुआ है। और इस टाइप का प्रोग्राम हर जगह होना चाहिए। और सियालदह जैसा जगह पर हम लोग ये प्रोग्राम देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, संतों का सानिध्य मिल रहा है, इतने लोगों का सानिध्य मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और ऐसा प्रोग्राम हर बार होता है इन लोगों का, और होना भी चाहिए, हर जगह होना चाहिए, जितने जगह अच्छे से अच्छा प्रोग्राम होना चाहिए। और बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है ये। इस टाइप का प्रोग्राम होने से उन लोगों को भी लग रहा है कि हमारे स्टेट में कुछ हुआ है, परिवर्तन हुआ। परिवर्तन का यही मजा होना चाहिए कि आप स्वतंत्र हो सकते हो कुछ भी बोलने के लिए, और लोग जुड़ेंगे और लोगों में राम की भावना बढ़ेगी, कृष्ण की भावना बढ़ेगी, धर्म का बोलबाला बढ़ेगा। यही हमारे समाज का सिद्धांत है, सत्य सनातन धर्म का यही चीज़ है, और होना भी चाहिए। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना अच्छा है। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। एक गुरु, आध्यात्मिक गुरु हमको मिला है। एक गुरु विश्व भर में ऐसा गुरु नहीं है। जो ये गुरु है, ये साक्षात भगवान का अवतार लेके आए हैं। और जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर धर्म अभिमानी, तब तब प्रभु धरे मनुष्य शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब दुष्टों का बढ़ जाता है तो प्रभु मनुष्य शरीर लेकर के धरती पर आते हैं। ये ऋषियों मुनि को सताते हैं तभी आते हैं। ये कलकत्ता में आज यही हुआ, देखिए भगुआ ही भगुआ हो गया। जब भगवान को पुकारे, जय जयकार हुआ, हमारा श्री राम को पुकारे तो भगवान सही धरती पर आ गए। और ऐसा ही हम लोग का विश्वास है। कितना भक्त जो है कि धराधाम पर आए हैं और इतना हम लोग जो है से कर रहे हैं इनके लिए। और ऐसा कोई मानव उत्थान सेवा समिति जो है, ऐसा कोई जगह नहीं है जो हमारा गुरु महाराज जी का हो रहा। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री भी है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। इससे इतना खुश है
कि हमारे बहू वेंटिलेटर पर थी, वो सांस चला गया था उनको, इनको भगवान माने हैं, भगवान है, हम लोग परिचित करके देखे हैं। लेकिन जब गुरु के छवि लगा के रख दिए तो डॉक्टर बोला क्या चीज़ है, हम बोले दुआ है, मेरे गुरु का आशीर्वाद है। बोले ऐसा तो कोई नहीं मानता, बोले हम मानते हैं। तो हमारे बहू 12 दिन के पर वेंटिलेटर पर से उनकी सांस आ गया, आवाज आ गया। सच्चे दरबार की जय। हम लोग बहुत बहुत खुश है, बहुत बहुत आभारी है इस सद्भावना सम्मेलन से। हम गुरु महाराज के बहुत बहुत आभारी है। इतना सम्मेलन हो रहा है, जन जन को पता चल रहा है कि हमारा कार्यक्रम बहुत आगे बढ़ रहा है और इससे हमको बहुत लाभ हो रहा है। हम चाहेंगे और सब जुड़े और इस संस्था में हम लोग का साथ दे, विकास करे। और मैं सदगुरुदेव महाराज की जय बोलकर बहुत अच्छा लग रहा है। महाराज जी के प्रोग्राम हो रहा है, बहुत अच्छा प्रचार हो रहा है हम लोगों का, और ऐसे ही हम लोग आगे प्रचार होते रहे, बहुत हम लोग का महाराज जी के प्रचार होते रहे। ऐसे स्टूडेंट्स को प्रेरणा मिलता है कि कैसे वो आगे बढ़े, कैसे वो आगे अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाए। तो महाराज जी के प्रोग्राम से उन लोगों को बहुत अच्छा प्रेरणा मिलता है। महाराज जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं, बहुत अच्छी चीज़ सिखाते हैं। तो बहुत 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 खुश हैं कि हमारे महाराज जी का प्रचार हो रहा है। इस प्रचार के लिए हम लोग सबको योगदान दे रहे हैं। हम लोगों को इतना बड़ा भाग्य है कि हम लोग इसमें, महाराज जी हम लोगों को चुने हैं कि हम लोग इसमें अपना थोड़ा थोड़ा कुछ गिलहरी के जैसे, कुछ बालू के जैसे, मतलब गिलहरी बालू का मतलब सेवा किए थे, उस तरह से हम लोगों को भी सेवा का मौका मिल रहा है। हमारे महाराज जी श्री सतपाल जी महाराज यही चाहते हैं कि ये सद्भावना सम्मेलन हम लोग इसको और आगे तक ले जाएं, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि युगों युगों में हम लोग का ये सद्भावना सम्मेलन आगे तक प्रचार हो। हाँ, ऐसे ही होते रहे हम लोग का प्रोग्राम। আগের শিয়ালদার এখনকার শিয়ালদার মধ্যে অনেক ডিফারেন্স এবং খুব ভালো লেগেছে আমার। আমি প্রত্যেক মাসেই আসি, তো খুব ভালো লেগেছে পরিবেশ। হ্যাঁ, একদম ভালো ভালো, এটা তো ভালো জিনিস, এর বলার কি আছে, এ বলার কিছু নেই, একদম অন্তর থেকে। आदरणीय सज्जनों, ये मानव उत्थान सेवा समिति पूरा विश्व में ये धर्म को प्रचार करती है। इसका प्रणेता सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज हैं। इनका करीब 3,000 से ऊपर संत महात्मा इस ज्ञान के प्रचार करते हैं, और ज्ञान के प्रचार के साथ साथ जैसे अस्पताल हुआ, वहाँ भी गरीबों के लिए जाड़े में कंबल वितरण, फल वितरण इस समय समय पर किया जाता है। विद्यालय में भी घूम करके जो हमारे बच्चे गरीब हैं उनको भी ये संस्था पेंसिल, किताब जैसे सामग्री है ये जा करके ये प्रदान करती है। तो आध्यात्मिक कार्य करते हुए ये समाज की कल्याण के काम ये मानव उत्थान सेवा समिति ये घूम कर करती है। यही हम लोग को सेवा बताया गया है कि जनता की सेवा कीजिए, धर्म के प्रचार कीजिए, ताकि सब आत्मज्ञानी बने, जीवन का कल्याण करें। धर्म का जब बहुत अच्छा, बहुत ठीक, ऐसा होना चाहिए। स्टेशन के बाहर इस तरह का कार्यक्रम होना कैसा है आपके विचार? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसा होना चाहिए। सगर होना, स्टेशन ही नहीं, हर जगह होना चाहिए, रोड पर के आसपास भी होना चाहिए। पहले के बंगाल में और अभी के बंगाल में मतलब सीधे सीधे 4 तारीख पहले ये सब नहीं होता था, पहले ये सब नहीं होता था, अब हो रहा, और यही हमारा मूल सिद्धांत है, इसको चलना चाहिए। बहुत खुशी हो रही है श्री गुरु महाराज जी की कृपा से। सद्भावना सत्संग समारोह पूरे भारतवर्ष में हर जगह होता रहता है, मगर सियालदा स्टेशन आज जहां हम लोग खड़े हैं, विगत पिछले कई वर्षों से हम लोगों को यहाँ कार्यक्रम करने के लिए परमिशन नहीं मिल पा रहा था, मगर आज हम लोग बहुत खुश है। श्री गुरु महाराज जी की कृपा बरसी है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, और सियालदा जैसे व्यस्ततम स्टेशन में
हम लोग इस प्रोग्राम को कर पाए हैं। मैं ये नहीं चाहता कि व्यस्ततम स्टेशन में हम प्रोग्राम करें और लोगों के बीच में लोकप्रियता हो। हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अध्यात्म का ज्ञान पहुँचे, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी का कहना है कि अध्यात्म के कारण ही भारत विश्व का गुरु बना था। आज पुनः विश्व का गुरु बनाने के लिए अध्यात्म को जन जन में पहुंचाना है और उसी अध्यात्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। और मैं समझता हूँ सियालदह स्टेशन के जैसे जगह पे जब ये कार्यक्रम होता है तो बहुत सारे लोग जो इस ज्ञान से वंचित है उनको इसका लाभ प्राप्त होता है। निश्चित तौर पे हर जगह जहाँ पे जन समुदाय अधिक लोग है वहाँ पे इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए। हाँ, इसमें ये जरूर कहूँगा कि हमारे कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिससे किसी पब्लिक को डिस्टर्बेंस ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा जगह हम लोगों ने गैप रखा है ताकि प्रशासन को या रेलवे प्रशासन को किसी प्रकार का तकलीफ ना हो। हमने साउंड बॉक्स को इतना मध्यम रखा है जिससे किसी को तकलीफ ना हो और हमारा मैसेज भी सब तक पहुँच जाए। और यही हमारा श्री गुरु महाराज जी का संदेश है कि सद्भावना फैलाओ। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। आप देखेंगे पिछली जो सरकारें थीं, हमें कहीं भी परमिशन लेने की ज़रूरत होती थी तो हमेशा अड़ंगा लगाया जाता था। आज आपको ये देना पड़ेगा, आज आपको वो करना पड़ेगा। कहीं कहीं हम लोग से पैसा ले लिया जाता था, उसका बिल भी नहीं दिया जाता था। और जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, शुभेंदु दा की सरकार आई है, सनातन की सरकार आई है, तब से हम लोग का जोश और मनोबल बहुत हाई है। और अभी ऐसा ही कार्यक्रम आगे बढ़ते जा रहा है। इसी कड़ी में अब हम लोग नेक्स्ट कार्यक्रम दक्षिणधारी में करने वाले हैं, जिसमें हम लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी को बुला रहे हैं। हम ऑलरेडी उनके पीए से मुलाकात कर चुके हैं। पीए ने हमें 30 जून के बाद एक निमंत्रण दिया है आने का। हम अपने सारे संत महात्मा को लेकर जाएंगे, शुभेंदु दा को इनवाइट करेंगे ताकि शुभेंदु दा उस कार्यक्रम में आए और सनातन का ये जो झंडा है ये सिर्फ कलकत्ता में ही नहीं, देश प्रदेश पूरा विदेश पूरा हर जगह लह रहा है। और हमारे महाराज जी का एक वाक्य है कि देश विश्व गुरु तभी बनेगा जब सब लोग मिलकर काम करेंगे और अंत लोगों तक हम लोग जाएंगे, तब ये देश आगे बढ़ेगा। आगे का 26 जुलाई का कार्यक्रम है। हम लोग ब्लड डोनेशन कार्यक्रम कर रहे हैं अपने आश्रम में। कोलकाता सीनियर सिटीजन फोरम की तरफ से हम दोनों मिलकर ब्लड डोनेशन कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। उसमें हम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर स्वपन दास गुप्ता जी, हमारे हावड़ा के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर उमेश राय जी, हमारी जोड़ा साको के विधायक विजय ओझा जी, मीना देवी पुरोहित जी, पूर्णिमा चक्रवर्ती मंत्री, तापस राय, इन सबको इनवाइट करेंगे और हम लोग इनका स्वागत का भी कार्यक्रम करेंगे। उसके बाद हमारा कंबल वितरण है, उसके बाद हमारा मिशन एडुकेशन का कार्यक्रम है, फिर अभी हावड़ा में पानी का भी कार्यक्रम होगा, जरूरतमंद लोगों को प्यास बुझाई जाएगी। यही सब अभी कार्यक्रम लाइनअप है। आज जो ये सब प्रोग्राम देख रहे हैं, ये सब हमारे जो आज भगवा का जो जय हुआ है, आज उसी का सारा कारण है। आज हमारे देश में, आज हमारा राज्य में अगर भगवा और बीजेपी की जय नहीं होती तो ये सारे जो प्रोग्राम देख रहे हैं कभी नहीं होने देते। क्योंकि इससे पहले काफ़ी सारे देखे आप लोग, जैसे आज हम लोग को दुर्गा पूजा भी ये लोग ठीक सही से नहीं होने दे रहे थे और सरस्वती पूजा भी नहीं होने दे रहे थे। ये धर्म के विरुद्ध में इतने ये लोग लगे हुए थे कि पूरे हम लोग को धर्म के विरुद्ध कोई काम ही करने नहीं देते थे। आज ये सारे जो देख रहे हैं सारे परिवर्तन, आज हमारा जो बीजेपी जो जीती है, इसी के कारण आज चारों तरफ धर्म कार्य का प्रचार हो रहा है। और ये मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज के बाद से जब तक हम लोग हैं, कभी भी कोई भी प्रोग्राम, हम लोग का धार्मिक प्रोग्राम इसी तरह बढ़ते रहेगा और कहीं भी कोई प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और लोगों में, हिंदुओं में एक धार्मिक धर्म के प्रति एक ज़्यादा प्रचार अभी चल रहा है।